चैनल स्टडी विथ रामेश्वर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू रजिस्टर द चाइल्ड फॉर क्लास 1 इन KVS एडमिशन पोर्टल। So there are two steps. First is registration and second one is submission of the form. So as you have seen in the first video how to about the KVS admission portal app through smartphone or Android phone. So in this video we are going to see the step by step registration as well as submission of the application form. So first you have to go to Google and type KVS admission. So as you click on it, KVS admission, so you will get this tab, that is online admission portal Kendriya Vidyalaya Sangathan. So click on it. So as you click on it, you will see this window, that is Kendriya Vidyalaya Sangathan home help desk FAQs, register and login. Okay, and below that there are instruction, pro forma document sample, print application and check application status. यहाँ पर दिया गया है कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है, और महत्वपूर्ण कुछ लिंक भी दी गई है, जैसे कि प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म and video instruction for filling the application form. So just you click on it, click here to registration. So as you click on it, so you will get this tab. So that instructions you can go by English and Hindi, in both the language it is available. So whatever the language you are suitable, so you can select जो भी language आपको suitable है, comfortable है, आप उसको choose कीजिए। और फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको आप अवश्य पढ़िए, समझिए और उसके बाद या रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। I have carefully gone through all sections and subsections of the instructions given above and I shall abide by all terms and conditions as per KVS admission guidelines. So click on it, आगे बढ़े, that is proceed. So as you click on proceed, you will get this tab. So here one things are the instructions are given again. Please fill the information in English only. So you have to fill all the information in English. पूरा इंग्लिश में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल संदीप जी बाठे, ठीक है, और उपनाम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम ऑफ चाइल्ड, देन इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल। अगर चाइल्ड डिफरेंटली एबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो। सो आई क्लिक ऑन इट, नो। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 14 अप्रैल 2015। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्रा पोत्री है। तो यहाँ पर आपको देखो, चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय। सो इसमें से अगर कुछ ऑप्शन आपका है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। सो क्लिक ऑन इट, नॉट अप्लीकेबल। So here the email address you have to fill. So valid email address as well as valid mobile number you have to give. And one thing I just want to instruct you, when you are giving the mobile number, just give your own mobile number. Don't give the number of your relative or net cafe owner, because whatever the information will come
about the admission, it will comes to your mobile number as well as on email address. ठीक है, तो जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे वो वैलिड नंबर दीजिए और आप अपना दीजिए, किसी और का बिल्कुल नहीं दे। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस करता हूँ ईश्वर @ ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, ओके, फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिया गया है उसको फिल कीजिए, NDUNW, फिर क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। सो एज यू क्लिक ऑन रजिस्टर सो यू विल गेट दिस टैब। तो OTP सत्यापित करें, वेरीफाई OTP, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था वहाँ पर आपको OTP आया होगा, तो एंटर OTP 426323, फिर एक कैप्चा कोड एंटर कीजिए GA9LFX। सो जैसे आप कैप्चा एंटर करेंगे यू हैव टू वेरीफाई इट। सो एज यू वेरीफाई यू विल गेट दिस टैब। तो आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, दैट इज यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप you have completed. So one thing you just keep it in mind, you have to keep the printout of it, or you can note down this login code because it is necessary for the next step. जो अगला स्टेप होगा फॉर्म फिल करने का, उसके लिए लॉगिन कोड की आपको बहुत ज़रूरी है। तो लॉगिन कोड आप नोट करके रखिए, ठीक है। वैसे वो मोबाइल नंबर पे आपके SMS गया होगा एज वेल एज मेल ID पर भी आपको ये मेल गया है, ठीक है, लेकिन आपको उसको नोट करके रखना। सो कम टू द लॉगिन स्टेप, सो कम टू द लॉगिन, आई एम गोइंग टू लॉगिन इट। सो जो मेल पे आपके आया होगा या आपने जो नोट कर लिया है उसको लॉगिन कोड एंटर कीजिए 2230165300, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त जो डेट ऑफ बर्थ एंटर की थी वही डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, ठीक है। अप्रैल। देन मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वही मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। Then captcha, then click on login. Oh, something login code शायद कुछ invalid हो गया है, 2220165300 invalid डेट ऑफ बर्थ होगी कुछ, तो 14 अप्रैल मोबाइल नंबर आई थिंक 8956085891 GKFGTP। शायद मोबाइल नंबर 8966800554। मोबाइल नंबर गलत हो गया था। फिर जैसे आप लॉगिन करते हो तो यू विल गेट दिस टैब। तो यहाँ पर देखो ऑल फील्ड्स मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी, please fill the information in English only. So here are the 5 steps are there. First one, basic information, time and detail, choice of school, upload document, declaration and submit. So all these steps you have to complete, and only then you are able to submit your application. So जो basic information थी उसमें से आपको ये हमने जो रजिस्टर करते हुए फिल किया था वो as it is आ गया। फिर हम कैटेगरी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो फीमेल है तो फीमेल में अगर वह सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा तो आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड करना है, लेकिन उसका आपको एफिडेविट भी देना है सिंगल गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। अगर अभी हम मेल है
तो हम यहाँ पर मेल, जेंडर मेल। फिर इनकम ग्रुप, अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप EWS में आते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन उस वक्त के लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर, बाद में डेट ऑफ इशूइंग, जब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी डेट, और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी वो भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। या सेम उसी तरह से BPL के लिए, ठीक है। तो ये भी वही उसी तरह से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं सिलेक्ट करते हैं, चूज़ कास्ट कैटेगरी। अगर आप इसमें से जनरल, OBC नॉन क्रिमिनल, SC ST, तो अगर जनरल के अलावा बाकी आप अगर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल OBC अगर आप एंटर करते हैं तो भी आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अभी जनरल में हैं तो जनरल सेलेक्ट करते हैं। फिर ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। फिर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू जस्ट सेव द एप्लीकेशन, क्योंकि बीच में अगर कोई लाइट अगर चली जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो इसलिए आपको सेव करते हुए जाना है। फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप। सो जैसे आप क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप करते हो, दैट इज़ पेरेंट डिटेल्स। तो पेरेंट डिटेल्स में आपको मदर्स एज वेल एज फादर्स यदि लागू है तो आपको इनमें से आपको डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हम मदर्स की डिटेल फिल करते हैं। मदर्स का फुल नेम, then nationality, that is Indian. So do you want to copy mother's residential address to autofill father's residential address? means mother और father दोनों का एड्रेस एक ही होगा, मीन्स एक ही जगह पे दोनों अगर रहते हैं तो आपको एक ही देना है। अगर कुछ कारणवश दोनों अलग अलग रहते होंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही है तो हम यस करते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कंट्री दैट इज इंडिया। चूज स्टेट, now we are in Maharashtra, I am in Maharashtra, so Maharashtra city Nashik। फिर एड्रेस that is rest Camp Road देवलाली, ठीक है। फिर यहाँ पर पिन कोड आप एंटर कीजिए 422-401। टेलीफोन नंबर आगे तो टेलीफोन नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वही। जो स्टार मार्क है उसको आपको कंपलसरी देना है, जो यहाँ पर देखिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ईमेल एड्रेस भी कंपलसरी नहीं है, तो स्टार जो दिया है मैंडेटरी है उसको आपको देना है। ऑक्यूपेशन अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ दीजिए, अगर कोई जॉब पर है तो आप उस जॉब मेंशन करके ऑर्गेनाइजेशन आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो सेम वे यहाँ पर आप आएंगे फादर्स डिटेल के लिए, मिस्टर GOVIN, बाटे, देन नेशनलिटी इंडियन। सेम जो एड्रेस हमने मेंशन किया था वही इधर आ जाएगा, सेम। देन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, देन ऑक्यूपेशन। अगर फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑक्यूपेशन एज अ टीचर हम मेंशन करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। क्लिक ऑन सेव एप्लीकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो उसको सेव करते हुए जाना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर आपके आता है चूज चॉइस ऑफ चॉइस का, यहाँ पर ये भी दिया गया, यू कैन अप्लाई अप टू 3 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय without any prioritization between them to fill your choice of Vidyalaya. Click on the tabs below. If you wish to apply to less than 3 Kendriya Vidyalayas, you can skip one or more tabs. However, at least one choice of Vidyalaya must be given. तो आपको कोई भी एक तो भरना ही है, तो 3 विद्यालय का आप दे सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक फिल करेंगे, that is choose state, that is महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए ये इतने सारे विद्यालय आपके सामने ओपन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर
केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 देवलाली। तो यहाँ पर विद्यालय की श्रेणी ओपन हो जाती है। डिफेंस, स्पॉन्सरिंग एजेंसी, आर्मी, रीजन मुंबई, लोकेशन टाइप दैट इज अर्बन। ठीक है, और यहाँ पर फिर आता है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। सो यहाँ पर देखिए फिर आता है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। मीन्स आपको डू यू नीड द हेल्प टू इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए अगर आपको आपकी कैटेगरी पता नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखिए एम्प्लॉयर चूज़ करके जो भी आपका जॉब होगा आप उस पर क्लिक करके आप आपकी कैटेगरी जान सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टेट गवर्नमेंट डाला था, तो स्टेट स्कूल टीचर, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा। तो सर्विंग है, तो यहाँ पर देखो कैटेगरी 3 डायरेक्टली उसने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कुछ और यहाँ पर आप आर्मी सेक्टर डालते हैं तो यहाँ पर सर्विंग है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कैटेगरी 1। सो यहाँ पर आप यस कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं तो आप यस कीजिए, अगर पता है तो आपको यहाँ पर नो कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सर्विस कैटेगरी, जैसे कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट दिया था तो यहाँ पर क्या चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज़ फादर्स का दिया था मैंने। तो यहाँ देखो पिछले, यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्ष में स्थानांतरण हुआ है तो आपको यहाँ पे यस अगर करते हैं तो आपको पूरा जो भी जितने ट्रांसफ़र हुए उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, लेकिन यस करते हो तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें देना है। तो वैसे ही फिल करने के बाद सेव करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ अपलोड डॉक्यूमेंट। और जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हो तो पहला है जन्म तिथि, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो हम ये बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करते हैं, जो इसकी साइज जो है 256 की भी होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर से अपलोड करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको डन आएगा। फिर उसके बाद फ़ोटो का साइज़ भी वही है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। फिर यहाँ से अपलोड कीजिए। ठीक है, इट इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। तो मैक्सिमम साइज़ जो है 256 की भी होंगी। और यहाँ से आप देख भी सकते हो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया सही है यानी व्यू करके। ठीक है, फिर जब आप यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। जो भी आपने यहाँ पर दिया गया है इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जब एडमिशन आपका फिक्स हो जाता है कि आपका एडमिशन हो गया, तो आपको स्कूल में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रेषित करने होंगे, प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, तो जो मैंने एंट्री फिल की थी, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ चाइल्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी आपने दिया है, तो ये सारा आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर आप इसे सेव कर दीजिए। फिर से आप जाइए नेक्स्ट पर। सो एज यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, so you will get this tab, last tab, that is declaration and submit. So declaration by the parent, तो जो भी आपने information दी है, that is I certified that I have read and understood all sections of all instructions for filling this online application form and I have filled in the application form as per the instructions. I certified that all the information provided is true to the best of my knowledge. जो भी जानकारी दी है मैंने पूरा सही जानकारी दी है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद यहाँ पर लास्ट में जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, फिर से सेव टू प्रीव्यू। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बटन को सबमिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन फिल की थी इट इज़ जस्ट फॉर द डेमो, फॉर गिविंग द डेमो। ओके, ये क्या करना है, जैसे ही आप पूरा
फिल कर देंगे। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सो आई थिंक जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। सो फॉर्म भरते वक्त जो भी बातें मैंने बताई है उसको आप ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।